Good afternoon, dear students. This is class of Dheeraj sir from Vatsalabai Vanwadi School of Scholar Armory, and we are studying mathematics of standard 6 with me. So, students, I hope you are enjoying your online classes, and I am requesting you please watch all the video continuously and give us feedback on my personal WhatsApp. Okay, and ask your doubts. Okay, second thing, whatever the homework and classwork we are providing you, please attempt and do it on time and send it on time. Okay, so students, our today's topic is even numbers and factorization. Today we are going to cover these two topics: even numbers, odd numbers and factorization. यानी कि total three topics we are going to finish in this video. So please concentrate 100% and focus. Okay. So student, already we have finished divisibility test. So I hope you understood the divisibility test. Divisibility test यानी कि एक ऐसा statement, this statement by which you come to know the number is divisible in the larger number or not. Okay, जैसे कि 2 की divisibility test, 2 की divisibility test यानी कि 2 जो है वो कौन से नंबर में divisible रहेगा, ये आपको बताने वाला स्टेटमेंट. तो 2 की divisibility बताने वाला स्टेटमेंट ये है कि if the number having 0 2 4 6 8 in its unit place, तो फिर वो नंबर 2 से divisible होगा. ओके, तो इस तरह से divisibility test हम लोगों ने फिनिश कर ली है. ठीक है, अब हम देखेंगे इवन नंबर्स. एक्चुअली ये एक छोटे क्लास की कंसेप्ट है. इवन नंबर्स तो आपको ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हम लोग इसको रिवाइंड कर लेते हैं कि इवन नंबर्स यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. आपने अगर इवन नंबर की कंसेप्ट सुनी होंगी, देखी होंगी, तो आपको पता है कि इवन नंबर यानी कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ऐसे डिजिट्स होते हैं, उनको इवन नंबर बोलते हैं. यानी कि 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है. एम आई राइट? अंडरस्टैंड? एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर नोन एज इवन नंबर्स. तो मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 है ना. तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स है आपके इवन नंबर्स, और इनमें 2 का डिफरेंस होता है. हर एक कंसेक्यूटिव, हर एक लगातार इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है. सो एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 etc. So even numbers are infinite. These are actually natural numbers, but they are multiples of 2 or completely divisible by 2. यानी कि 2 4 6 यानी कि ये multiples of 2 है. 2 4 6 8 10 12. सो दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है. इफ यू माइनस 4, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 देन यू विल गेट 2. इफ यू सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 4 देन यू विल गेट 2. तो दो लगातार इवन नंबर का डिफरेंस जो होता है वो 2 का होता है, वो 2 का होता है. ठीक है, सो इवन नंबर यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 called as even number. या फिर दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि all the multiples of 2 are known as even number. Okay, in short 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 जिसके लास्ट में है, यूनिट प्लेस पे है, then all the numbers are considered as even number. Okay, so I hope you understood. Afterward odd number we are going to understand, and this is opposite of this even number. तो इसका डेफिनेशन ये है कि all natural numbers which are not exactly divisible by 2 or not the multiples of 2 are called odd numbers. All natural numbers which are not exactly divisible by 2 यानी कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है, that numbers will not be exactly divisible by 2. In common sense we can, in common way we can say कि the multiples which are not
the numbers which are not the multiples of 2 or not the multiples of 2 numbers are not the multiples of 2 are called as odd number. तो फिर 2 के टेबल में आने वाले नंबर कौन से 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स के अलावा कौन से दूसरे नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 ये कहलाते हैं ऑड नंबर्स. ओके, जिसको एग्जैक्टली 2 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे. इफ यू डिवाइड दिस नंबर सो देयर विल बी रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर रहेगा. तो ये ऑड नंबर्स समझ में आई बात. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स हैं. इसमें से ऑड नंबर कौन सा है 1 3 5 7 9. इनको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं करवाएंगे, बट 2 4 6 8 10 ये नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स है, इनको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे. ओके, so I hope you understood the concept of even numbers and odd number. Later we are going to understand factorization. Factorization we are going to understand, and this is very easy. Already I have explained you what is meant by factor. Factor means the number or the divisor which can be completely divisible in dividend. Okay, जिस नंबर से हम किसी भी डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हैं उस डिवाइजर को, उस नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है. इफ 6 इज डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3. ओके, 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3. तो जो ये 2 है, 2 जो है वो 6 का क्या होगा फैक्टर होगा. अगर हम 2 का टेबल 6 आने तक बोलते हैं तो वो 3 टाइम्स बोलना पड़ता है. इट मींस 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है. ओके, तो ये 3 भी इसका फैक्टर कहलाता है. इन कॉमन वे वी कैन प्रिपेयर द स्टेटमेंट, प्रोडक्ट स्टेटमेंट हम बना सकते हैं. 2 3 जा 6, 2 into 3 equals to 6. इट मींस 6 डिवाइड बाय 2 equals to 3 and 6 डिवाइड बाय 3 equals to 2. यानी कि 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे, 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे. तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे. अंडरस्टैंड. तो अगर हम लोग किसी भी नंबर का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला स्टेटमेंट बनाएंगे. ओके, प्रोडक्ट वाला स्टेटमेंट बनाते हैं और वो बहुत इजी है. इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं. टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, दिस इज बाय द लिस्ट मेथड. ओके, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर list method. So students, there is first example 48. Okay, to find out the factors of 48, what we have to do, we have to prepare the product statements. Okay, multiplication का statement बनाते हैं. तो शुरुआत हम 1 से करेंगे. किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है, स्मॉलेस्ट फैक्टर विल बी 1. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1. ओके, so and the largest factor will be the number itself. वही खुद नंबर लार्जेस्ट फैक्टर होता है. ओके, तो शुरुआत हम 1 से करेंगे. 1 into कितना करने से 48 आता है. so 48 equals to 1 into 48 equals to 48. ओके, तो 1 will be the factor and 48 will be the factor, क्योंकि 48 को 48 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 48 को 1 से 48 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं. am I right? So this both are the factors of 48. तो शुरुआत हम 1 से करेंगे. Later we have to think about 2. क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 2 को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, उनका रिजल्ट 48 आएगा? Yes, we can. Because अगर हम 2 की बात करेंगे तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है. So जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. इसका मतलब यह है कि 48 का 2 फैक्टर है. बट 2 को अगर हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है, इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. तो ये जो 24 नंबर पता करने के लिए आपको 2 से 48 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा. सो अगर 2 से डिवाइड करते हैं 48 को तो इन माइंड यू हैव टू डिवाइड. ओके, एवरी टाइम वी कैन नॉट कैरी द ऑपरेशन. हम हर एक बार ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड गेम खेलना पड़ेगा. यानी कि माइंड में हमें डिवीजन करना पड़ेगा. सो रूल क्या है,
डिवीजन का उल्टा रूल है, यहाँ से आप शुरुआत करते हो, लेफ्ट टू राइट शुरुआत करते हो। ओके, सो 2 से 48 को डिवाइड करना है। सो पहले हम फर्स्ट डिजिट के बारे में सोचते हैं। थिंक अबाउट द फर्स्ट डिजिट। सो फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 2 एंड दैट इज 4, और 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिख दिया 2। बाद में 4 को डिवाइड करके हो गया, फिर 8 को डिवाइड करिए, 2 4 जा 8। ओके, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 8 आने के लिए हमने 4 टाइम्स 2 को लेना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8, तो 24 बन गया। इट मींस 24 2 जा 48, तो 24 भी इसका फैक्टर होगा और 2 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद आप 3 के बारे में सोचिए। 3 के क्या हम 48 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आप याद करिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या कहती है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम 4 और 8 का सम करते हैं तो सम आता है 4 + 8 12 and 12 is divisible by 3, therefore 48 also divisible by 3। तो चलो, तो फिर कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 3 लीजिए, और यहाँ पे थिंक अबाउट फर्स्ट डिजिट दैट इज 4। 4 को डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, तो 1 टाइम। हम 4 को 3 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये देखिए 48, 3 1 जा 3, अब 4 में से 3 गया, 1 बचता है, 1 बचता है, देन 1 इज रिमाइंडर, देन ब्रिंग डाउन 8, ये 18 होता है। तो ये मन में करिए, माइंड में। सो 3 1 जा 3, इसमें से 1 रिमाइंडर रहता है, 1 के ऊपर आपने 8 रखा तो वो 18 हो जाता है, और ये फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 16 3 जा 48। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बनाने हैं, और फिर 3 भी इसका फैक्टर होगा और 16 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद 3 हो गया। फिर सोचो 4 के बारे में, क्या हम 4 से मतलब कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है आपको। अब 3 हो गया, 4 के बारे में सोचिए, क्या 48 में 4 डिविजिबल है? यस, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 2 लिख दिया हमने, दैट इज 12। सो 12 4 जा 48, राइट है। सो 12 will be the factor of 48 and 4 will be the factor of 48। उसके बाद 5 के बारे में सोचिए। 4 के बाद 5 will not be divisible, can't divisible in 48 because लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, अगर लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो लेकिन यहाँ पे 8 है, 5 या 0 नहीं है, तो 5 का फैक्टर वो नहीं होगा, 5 उसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 6 के बारे में सोचिए। 5 हो गया, 6 के बारे में सोचिए। 6 यस, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, if the number is divisible by 2 and 3, अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, ये यहाँ पे देखिए 2 और 3 से ये नंबर डिविजिबल है, देन डेफिनेटली 48 भी इज डिविजिबल बाय 6। ओके, ये टेस्ट बोलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। तो 6 के साथ इसको डिवाइड करिए, 6 8 जा 48 हो गया, ठीक है। बाद में आपको 7 के बारे में सोचना है। 7 के टेबल में तो 48 आता ही नहीं है, 7 will not be the factor। then 8 के बारे में सोचिए, लेकिन 8 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो जब कोई नंबर आपको रिपीट दिखता है, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो और एक आपको नंबर रिपीट दिखता है, तो समझिए कि फैक्टर्स खत्म हो गए, ठीक है। अब वो रिपीट आएंगे, ऐसे रिपीट आएंगे, 8 12 16 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो आ जाएंगे, ठीक है। देन फाइनली आपको फिर लिस्ट बनानी है 48 के फैक्टर्स की। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिनसे हम 48 को डिवाइड कर पाएंगे। 1 से भी हम 48 को डिवाइड कर पाएंगे, 48 से भी 48 को डिवाइड कर पाएंगे। These are all the factors of the number, okay, 48। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हो, so the smallest factor is 1, किसी भी नंबर का smallest factor 1 होता है, and the largest factor is the number itself, okay। उसके बाद यहाँ पे मैंने 78 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है। 78 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, 78 मैंने कहा था शुरुआत आप 1 से करिए और इसको इनटू के फॉर्म में लिखिए। 78 को इनटू के फॉर्म में लिखिए, 1 * 72 = 72। फिर 2 के बारे में सोचिए, लास्ट डिजिट इज 2,
डेफिनेटली 2 से भी डिविजिबल है। 2 3 जा 6, इसमें से 7 को हम 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और इसमें से 3 2 जा 6 होता है, फिर इसमें 1 बचता है, ठीक है। फिर 1 के ऊपर ये 2 रखिए, 2 6 जा 12, ये हो गया 12। सो ये जो आप डिवीजन करते हो मन में करना, ठीक है। उसके बाद आप 3 के बारे में सोचिए, 2 के बारे में हो गया, 3 के बारे में सोचिए। 3 से भी 72 डिविजिबल है, क्योंकि 3 की टेस्ट क्या होती है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये डिजिट का सम करके देखिए, 7 + 2 = 9 and 9 is divisible by 3, therefore 72 also divisible by 3। तो 3 2 जा 6, 7 को हम 3 से 2 टाइम्स डिवाइड कर पाएंगे, फिर 7 में से 6 आता है प्रोडक्ट, तो 1 बचता है, 1 के ऊपर ये 2 रखा, 12 होता है, 3 4 जा 12, ओके। तो ये हो गया 3 4 जा 12। उसके बाद आप 3 के हो गए, 4 के बारे में सोचिए, 4 1 जा 4, ओके। 72 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 7 को आप 1 टाइम डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, इसमें से बचता 3 के ऊपर ये 2 रख दीजिए, दैट इज 32, एंड 4 8 जा 32, सो दैट इज 18, ओके। उसके बाद आप 5 के बारे में सोचिए, 5 इसमें डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए, ओके। उसके बाद आप 6 के बारे में सोचिए, सो 6 यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, 72 is divisible by 2 and 3, so therefore 6 के साथ भी वो divisible होगा, ठीक है। So माइंड में आप इसको डिवाइड करके देखिए 6 से, so 7, think about the first digit, 6 1 जा 6, so result is 1, 7 में से 6 चला गया, ओके, 6 1 जा 6, 7 में से 6 चला गया, 1 रहता है, 1 के ऊपर आप ये 2 रखिए, it will be 12, okay। so 6 2 जा 12, okay। so 12 6 जा 72, मिल गया आपको 2 फैक्टर्स। उसके बाद आप 8 के बारे में 7 के बारे में सोचिए, 7 is not divisible in 72, तो आप 8 के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, so 8 9 जा 72, okay। उसके बाद 9 के बारे में सोचिए, 9 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से समझ लेना कि ये फैक्टर्स खत्म हो गए। देन फाइनली आप लिस्ट बना सकते हैं, all the factors of 72 equals to 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 and 72। तो ये बन गई आपकी लिस्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ओके। और मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको 2 प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए देता हूँ, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एट होम, ओके। तो इसमें से एक है 36 और एक है 40, ओके, 40 नहीं 50। सो ये 2 नंबर्स के आपको बाय दिस मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। एंजॉय दिस सेशन, ओके। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।